ધ્રુવ ધ્રુવ Yes, sir. Good morning. ગુડ મોર્નિંગ. હું તને હોસ્ટ બનાવું છું. તું કમલચંદને હોસ્ટ બનાવી દેજે પછી. હા, કઈ વાંધો નહીં. હા ને? Kavya, I have already joined. Kavya, I have already અચ્છા, joined. ઓકે સર. આ યુગલ ક્લાસીસથી તમે જ છો? Yeah, you will class થી હું જ છું. ઓકે સર, તો હું પછી તમને હોસ્ટ બનાવી દઉં છું. Yeah, તમે ધ્રુવને કો હોસ્ટ બનાવી દો. yeah, okay, okay. ઓકે.
Good morning, students. Now, beta, last in the video lecture, I suppose you saw sum number 5 and you solved it out. Sum number 5 from the video lecture. That was the sum which you were supposed to see and solve. And question number 18 was given to you as homework. Question number 18 was your homework, if I remember. Beta, yes or no? Yesterday I got around 10 to 12 messages of few students who were not able to do this adjustment number 1. So what I thought कि adjustment number 1 अगर नहीं कर पा रहे हैं, so what I thought is कि let me explain the entire sum, the bifurcation, and if any of the adjustment which are not understood by you people, and because of that आप लोगों ने शायद वो सम ना कर पाए हो, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको 1-2 दिन में भेज दूंगा. आई एम वर्किंग ऑन इट बिकॉज इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन. लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बनता है मैं आपको भेज ही दूंगा उसका भी सॉल्यूशन, जैसे मैंने प्रीवियस सम होमवर्क सम्स के भेज दिए थे. So what I feel is go on to that sum number 18 which was your homework. Everybody go on to your sum number 18 which was your homework. Let's start. Beta, let's start the bifurcation first. Let's start the bifurcation first. But I am finding out that sum, not to worry, pay the attention. Okay, beta, here is your sum. Question number 18. Here is your sum. Question number 18. I am doing the bifurcation first. You just check your answers, whether the bifurcation done by you are proper or not. Adi and Rushi are the partners in the partnership firm sharing profit and loss equally. The trial balance of the firm as on 31st March was as follows. Opening stock. But the opening stock will go to trading account. Opening stock will go to trading account. Leasehold property, balance sheet asset, but put a tick. It is from 1/4/2018 for 5 years. It has got hidden adjustment. ये leasehold property 5 years का है. It has got a hidden adjustment. So that we'll see. Salary and wages will go to profit and loss. Carriage on purchases, बेटा वो है carriage inward. Carriage on purchase is nothing but it's carriage inward. It will go to trading account. Sales return, trading account. Cash on hand, balance sheet asset. Electricity charges, profit and loss. Debtor, balance sheet asset. Discount, profit and loss. Tax and insurance, profit and loss. Stationery and telephone, profit and loss. Bit of a teacher, asset. Machinery, asset. Purchases, trading account. Bank balance, asset. Bill receivable, asset. अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा. रुको. Acha, Riva, are you there in the meeting? Riva. I saw you joining today. Riva. Unmute, Riva. Riva, unmute. Ria, unmute. Ria. Yes, sir. Beta, Ria, the next item reminds me of you. Trading expense. Where will it go? P&L. Trading expense, P&L, Riva. Profit and loss account. Okay, बढ़िया. देखो मेरे को तुम्हारी याद आ जाती है. Trading expense. Profit and loss. Yeah, profit and loss account. Very good. Profit and loss.
Then bad debts will also go to profit and loss. Then Adi drawings and Rushi drawings. But Adi drawings and Rushi drawings, write down PC, it will go in partners current account. Sorry, not current account, I'm sorry, capital account. We are not making here any current account, it will go to capital account. So Adi Rushi capital on the credit side, partners capital account, interest, profit and loss, creditors, balance sheet liabilities, bad debt recovered, P&L, Billu payable, Billu payable will go to balance sheet liability, purchase return, it will come to trading account. Then loan from Rushi, balance sheet liability. But this provision for bad debt is nothing but it is bad debt reserve. Provision for bad debts is nothing but it is bad debt reserve. It will go to profit and loss account. And then we have to make that TAT table, TAAT. वैसे table में ये जाएगा, bad debt reserve. Sales, trading account. But at the total 22,21,000, 22,21,000, it is getting tallied on both the side. But now tell me honestly, but you can give me your thumbs up. How many of you did this bifurcation correctly? All correct. But all correct. But shall I share the screen so that you can verify your answer? मैं screen share करूं so that you can verify your answer. Oh, very few. Very few. Aksha, what's your doubt? Aksha, unmute. Aksha. Aksha. सर वो लोन में हिडन एडजस्टमेंट है. हाँ तो तुम मेरा सीक्रेट क्यों रिवील कर रहे हो यार? मेरा सीक्रेट रिवील कर दे रहे हो तुम यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप भूल गए. मैं नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूला हूँ. ये सीक्रेट था यार, मैं अभी जनता को चॉकलेट ऑफर करने वाला था. ये हिडन एडजस्टमेंट बोल के आई वुड हैव ऑफर्ड चॉकलेट टू द जनता, और जो जवाब देती उसको चॉकलेट मिलता. अब तेरे को नहीं मिलेगा, जा, अब तेरे को नहीं मिलेगा बेटा. अब अक्षा ने सीआईडी की तरह राज खोल दिया है, लिख लो. लोन फ्रॉम ऋषि, बेटा इट्स अ पार्टनर लोन. ऋषि इज माय पार्टनर एंड ही इज गिविंग लोन. सो हम एडजस्टमेंट देखते हैं. अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी इस इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला, इस लोन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है, तो आई टेल यू कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी गिवन, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी गिवन टू दिस पार्टनर लोन, तो उसको भी टिक कर दो. इट हैज गॉट अ हिडन एडजस्टमेंट. लोन फ्रॉम ऋषि को भी टिक कर लो, इट हैज गॉट हिडन एडजस्टमेंट. बेटा फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की मैं वर्किंग कर ही देता हूं, बिकॉज मेनी ऑफ देम हैड डाउट्स, मेनी ऑफ देम हैड डाउट्स इन क्लोजिंग स्टॉक. तो चलो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of value of closing stock. Calculation of value of closing stock. Now, how much amount of closing stock do I have? That is 60,000. 60,000 का closing stock है मेरे पास. 60,000 का closing stock है मेरे पास. उसमें से 50% जो goods है, 50%, that is 60,000 की 50% अगर मैं book value निकालूं, तो बेटा 60,000 का अगर हम 50% करें, so it will come to 30,000. It will come to 30,000. And ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो 50% गुड्स है उसकी मार्केट वैल्यू 10% डाउन है. The market value is 10% less. So यहां पर 50% का जो बुक वैल्यू है which is 30,000, उसकी मार्केट वैल्यू 10% लेस है.
मतलब द मार्केट वैल्यू इज लेस, 3000 से मार्केट वैल्यू लेस है, सो द मार्केट वैल्यू इज 27,000. द मार्केट वैल्यू इज 27,000. फिर ऐसा बोल रहे हैं 25% ऑफ द गुड्स, तो 25% ऑफ द गुड्स का अगर मैं बुक वैल्यू ढूंढूं तो वापस मुझे 60,000 का 25% करने का, which comes to 15,000, which is coming to 15,000, एंड उसकी मार्केट वैल्यू सीधी हमको दे दी है, जरा चेक करो. द मार्केट वैल्यू इज 14,500. सो द बुक वैल्यू 25% बुक वैल्यू विच इज 15,000, उसकी मार्केट वैल्यू हमको दे के रखी है 14,500. आर यू गेटिंग इट? एंड नाउ बेटा प्लीज बी अटेंटिव. 50% 30,000, 25% 15,000. So beta there is remaining 25%, because 50 25 that comes to 75, तो बाकी बचे भी 25%. तो उसकी बुक वैल्यू अगर मैं ढूंढूं तो वो 15,000 ही है. 60,000 का 25% करेंगे तो 15,000 आएगा, और इसकी मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी 15,000 ही होगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज नो इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, सो बुक वैल्यू 15 एंड मार्केट वैल्यू भी 15, ऐसा हम मान के चलेंगे. अने अब बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का रूल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का रूल क्या है? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस. So we'll select 27,000, we'll select 14,500, we'll select 15,000. यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 27,000 plus 14,500 plus 15,000. So बेटा my final amount will be 27 plus 14,500 plus 15,000. So मेरा फाइनल आंसर क्लोजिंग स्टॉक का आएगा 56,500. बेटा द वर्किंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. द वर्किंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज फिनिश इट ऑफ. द वर्किंग देयर इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज फिनिश इट ऑफ. Okay, but how many of you could find out this answer? 56,500 आ गया था. 56,500 आंसर आ गया था क्लोजिंग स्टॉक का. ओए, बहुत सारे लोगों का आ गया था यार. एंड आई कैन सी बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया है. बहुत सारे लोगों का नहीं भी आया है. सो बेटा आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन. जिनसे नहीं हुआ था दैट्स ओके. एकदम फटाक से घपड़ घपड़ कॉपी मार लेंगे. चलो बेटा दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक 56,500. नाउ क्लोजिंग स्टॉक का हमने वैल्यू ढूंढ लिया 56,500. नाउ हु विल गिव मी द टू इफेक्ट्स. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कौन बताएगा मेरे को? चलो शाबाश. क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए. जानवी ठक्कर, जानवी. Closing stock account debit to trading account. And what will be the two effects, beta? Your entry is correct. What will be the two effects? Closing stock balance sheet asset side. Yeah. And in trading account in credit side. Yeah, तो लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट के असेट में जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट के असेट में जाएगा. बेटा एवरीबॉडी रीड द सेकंड एडजस्टमेंट.
we have to write off bad debts 5,000 rupees and create 10% bad debt reserve. Now ये कौन समझाएगा मेरे को? ये सेकंड एडजस्टमेंट बहुत इजी है, सेकंड एडजस्टमेंट बहुत इजी है. स्वाति, अनम्यूट स्वाति. Yes, sir. स्वाति सेकंड एडजस्टमेंट समझाएंगे. सर बैड डेट से तो डेबर्स में से माइनस होगा. डेटर में से पहले मैं क्या करूंगा स्वाति? व्हाट विल आई डू फर्स्ट? बैड डेबर्स माइनस करेंगे सर. अच्छा, डेटर की वैल्यू बेटा 2,50,000 है. डेटर की वैल्यू 2,50,000 है. तो उसमें से पहले हम क्या करेंगे? 5,000 बैड डेट हम माइनस कर देंगे. हाँ. सो 2,45,000 आएगा. उसके बाद क्या करेंगे स्वाति? उसके बाद क्या करेंगे? और क्रिएट द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10% ऑन डेबर्स. जो भी रकम आई उसमें से 10% करेंगे. સ્વાતિ ગુજરાતી ખબર પડશે? ગુજરાતીમાં હોય તો સમજાવો, વાંધો નથી. ગુજરાતીમાં સમજાવો. હા, એટલે એમાંથી જે બી રકમ આવશે ને એના 10% કરવાના છે. એટલે આપડા 2.5 લાખ હતા ડેટર બેટા, આપડા 2.5 લાખ હતા, એમાંથી 5,000 ગાલખાત થયો. હા. અને પછી રહ્યા 2,45,000. યસ. અને એ 2,45,000 પર આપણે 10% ગાલખાત અનામત બનાવવાનો છે. હા. સરસ. એટલે એના અગર આપણે 10% લઈએ so that comes to 24,500. બરાબર? હા. અને આની બીજી ઇફેક્ટ ક્યાં જશે? આ ડેટર વાળી આપણે કરી કાઢી, બીજી ઇફેક્ટ ક્યાં જશે? બીજી प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे क्रेडिट साइड. इसमें टाटना क्रेडिट साइड के डेबिट साइड? उधार बाजू जैसे है. हाँ, उधार बाजू એટલે ડેબિટ સાઈડ જશે. ઉધાર બાજુ એટલે ડેબિટ સાઈડ. અને ડેબિટ સાઈડ આપણે કેવી રીતે બતાડીશું? टाटनी રીતે. હા, ટાટની રીતે આપણે બતાડી દેશું. બેડ ડેટ એઝ પર ટ્રાયલ બેલેન્સ, બેડ ડેટ એઝ પર એડજસ્ટમેન્ટ, બીડીઆર એઝ પર એડજસ્ટમેન્ટ, લેસ બીડીઆર એઝ પર ટ્રાયલ બેલેન્સ. એટલે ટેબલ આપણે બનાવેલું જશે ઉધાર બાજુ, એમાં ખાલી આપણે આ રકમ પૂરી દેવાની. ઓકે સર. Yeah, done. But anybody else is having doubt? Anybody else is having doubt in this bad debt and bad debt reserve वाला adjustment में? किसी को कोई डाउट है? बेटा bad debt અને bad debt reserve માં કોઈને डाउट? સરસ. Next. Depreciation on machinery and furniture. बेटा, don't you think it's the most easiest adjustment? I need to discuss this. If I need to discuss it, go back to 11th standard or go back to 11th standard. It's very easy. What say? But what say? यार? What say? Yeah. अभी आंसर कौन देगा? सब ऐसे तो कर रहे हैं, शाला आंसर कौन देगा मेरे को? थम्स अप दो, आंसर कौन देगा? कृष्णा अनम्यूट. कृष्णा. Good morning, sir. Morning. Sir, my depreciation minus asset में and second is the P&L debit side. क्या से जितने भी asset है उसमें से depreciation minus कर देंगे and the second effect will come to profit and loss debit side. बहुत बढ़िया. Asset माधी minus and second effect will go to P&L debit side. Depreciation for Gujarati medium student, depreciation is nothing but घसारो. Depreciation is घसारो. તો આપણા અસેટ માંથી એક ઘસારો આપણે માઈનસ કરી દેશું અને નફા નુકસાન ખાતાના ઉધાર બાજુ લખી દેશું. નફા નુકસાન ખાતાના ઉધાર બાજુ લખી દેશું આપણે. બેટા નેક્સ્ટ વાળું इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बेटा दीज आर फ्यू एडजस्टमेंट जो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड में बोलता था कि ये ऐसे एडजस्टमेंट हैं कि जो हमको 1-2 मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि बाकी के एडजस्टमेंट तो समझ में नहीं आते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब मेरे मार्क्स लाने वाले एडजस्टमेंट है. इनमें कभी भूल नहीं हो सकती है मेरे से, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. तो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दो इफेक्ट कौन बताएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वेयर विल द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछा जाए, मानसी से पूछा जाए. मानसी. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग.
ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં ડેબિટ સાઇડ. માનસી ક્યાં જશે? પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં. પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં જશે? હા. બેટા શું સવારે બોમ્બ ફોડે છે યાર? માનસી બોલ ક્યાં જશે? સરખું બોલ. સર ત્યાં જ જશે. પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં જશે? હા. કઈ બાજુ? ડેબિટ સાઇડ અને પીએનએલ એપ્રોપ્રિએશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ. અચ્છા મને અમાઉન્ટ કે તો કેટલી આવશે? વોટ ઇઝ ધ અમાઉન્ટ? 3000. કેટલા? અમાઉન્ટ કેટલી છે? 3000. અમાઉન્ટ 3000 છે. 12% છે. સો 12% ડ્રોઈંગ્સ 25,000 ના 12%. એટલે you are getting 3000. Yes. Interest on drawings, what Mansi said is absolutely correct. Partners capital debit side and P&L appropriation credit side. Okay. બેટા હર્ષ તે સમ કર્યો છે? હર્ષ પટેલ ઓપી હર્ષ પટેલ ઝડપાયો. હે હર્ષ કેમ નહીં કર્યું? સર બે 1 વીક થી કે ક્લાસીસ અટેન્ડ નહીં કરે સર. તો આપણે મારા વિડિયો લેક્ચર જોતા નથી એપ પર? સર નહીં જોયા, મોબાઈલ જ તૂટી ગયો સર, કોઈ મોબાઈલ જ નહીં હમણાં ફિલહાલ. બે તું પહેલો માણસ છે જે મોબાઈલ વગર અઠવાડિયું રહી ચૂક્યો. ન તો આજની જનરેશન તો મોબાઈલ અગર સવારે તૂટે અને બપોર સુધી ના થાય તો એ તો જમવાનું મૂકી દે છે. નહીં સર હમણાં. અને ભાઈબંધનું લેપટોપ મારી લાવ્યો છું એટલે એમાં જોઉં છું બધું. તો બેટા આ ક્યારે છે? આપણે એટલે ગણેશ ચતુર્થી ના બેટા આપણે ગણેશ બાપાને મુહૂર્ત પૂછીને આપણે આગળ વધવાના છીએ કે હવે ક્યારે ભણીશું? ના સર કે આપણે ગણેશ બાપાને આપણે યુવિલની લર્ન એપ આપણે એમના ચરણોમાં મૂકી દેશું અને કહેશું તમે બાપા ફ્રી જ બેઠા છો, બધા વિડિયો લેક્ચર જોયા કરો અને વિસર્જન વખતે મને બ્લુટૂથ થી બધા ટ્રાન્સફર કરી આલજો મારા મગજ પર. બેટા મુહૂર્ત નીકળશે કે નથી નીકળવાનું હર્ષ? નીકળી જશે સર, નીકળી જશે આજથી. હારું ચાલ સરસ કરજે બેટા કરજે, નહીં તો ખબર જ નહીં પડે ક્યારે ચેપ્ટર પતી ગયો ને હું કયા ચેપ્ટર પર જતો રહ્યો, ખબર જ નહીં પડે. ના સર પડી જશે. The next, salary paid to Rushi 2500 per month. Salary paid to Rushi. Can I say Rushi is my partner? And हम उसे salary दे रहे हैं 2500 per month. रिया unmute रिया. कैसे करेंगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ માં ક્રેડિટ સાइड. P&L appropriation में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. लेकिन रिया अमाउंट कितनी आएगी? 30,000. क्यों 30,000 आएगी? सर આખા વર્ષની એટલે 2500 into 12 પર મંથ કેમ કરવાનું? પેલા રિયા 12 કેમ કરવાનું બેટા? સર આખા વર્ષની સેલરી આપવાની છે ને. આખા વર્ષની આપવાની છે? હા. અહીં જો અહીંયા શબ્દ શું વાપર્યો છે? PM પર મંથ. અહીંયા 2500 પર મંથ આપેલો છે એટલે તારો આન્સર સાચો છે કે આપણે આખા વર્ષની સેલરી દેવાની, પણ 2500 પર મંથ છે તો into 12 કરીશું. So I'll get 30,000. As in the question it is mentioned 2500 per month. In the question it is said हमको salary देनी है 2500 but per month and we are making final account for entire year, इसलिए हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2500 into 12 30,000. इफेक्ट जो कही बिल्कुल सही है, P&L appropriation debit and partners capital credit. Okay, now beta there are two hidden adjustment. एक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, एक अक्षा ने आइडेंटिफाई कर लिया था. पहला है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का. वो कौन समझाएगा मेरे को? चलो शाबाश. लीज होल्ड प्रॉपर्टी, who will explain me that? 1/5 15,000 જેવું આવું જોઈએ. એલા હર્ષ તને નહીં પૂછતો યાર, તને પૂછતો જ નહીં યાર.
बेटा वेरी फ्यू थम्स अप फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बेटा समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में आ ही नहीं रहा है क्या लीज होल्ड प्रॉपर्टी? सब ऐसा बैठे हैं कि कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा, उसका राह देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ मेरे को अनीश ने हाथ ऊपर किया था। अनीश, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जरा समझा अनीश। हेलो। हाँ अनीश। यस सर। हाँ सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के असेट साइड आएगा। यस। हाँ तो 3 लाख का डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। हाँ तो वो आएगी अमाउंट 60,000। तो वो 60,000 की आ रही है। 60,000 की आ रही है। हाँ तो 3 लाख में से वो 60,000 माइनस कर देंगे। ओके। और आउटर कॉलम में फिर 2,40,000 और जो 60,000 वाली जो अमाउंट है हाँ वो P&L डेबिट साइड में आएगी। बहुत बढ़िया। नाउ सी, बैलेंस शीट में हम असेट साइड विल शो leasehold property will show on the asset side leasehold property. Now that is 3 lakh. Leasehold property that is 3 lakh, and they are saying कि हमने ये भाड़े पे जो प्रॉपर्टी ली है that is for 5 years. मतलब हमने 5 साल का रेंट एक साथ पे कर दिया है। मैं 5 વર્ષનું રેન્ટ એક સાથે ભરી દીધું છે। Now that 5 years is starting from 1/4/2018, मतलब from this current year। वो 5 साल ये करंट ईयर से शुरू हो रहा है। सो अगर ये करंट ईयर खत्म हो जाएगा तो जो बिल्डिंग हमने 5 साल के लिए लिया था उसमें से हमने 1 साल वो बिल्डिंग को यूज कर लिया। मतलब हमने 1 साल का जो रेंट हमने उसको जो पे किया था वो यूटिलाइज हो गया। तो अकाउंट्स में टेक्निकली हमें क्या बोलना है? अकाउंट्स में टेक्निकली हम क्या कहेंगे कि अगर ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी 5 इयर्स के लिए ली थी तो उसमें से 1 ईयर अगर खत्म हो गया तो 1 ईयर का लीज खत्म हो गया। अब 1 ईयर एंड्स, सो 1 ईयर लीज इज नाउ फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो 1 साल का लीज हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो टेक्निकली हम अकाउंट्स में बोलते हैं लीज रिटर्न ऑफ। अकाउंट्स में हम कहते हैं इसको लीज रिटर्न ऑफ। 1 साल का भाड़ा अब हमें उसमें से राइट ऑफ कर देना है बिकॉज 1 साल हमने वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली यूज कर दी। तो यहां पर वी हैव टू डिवाइड दिस 3 लाख इनटू 1/5 so that you'll get 60,000। so outer column जाएगा 2,40,000। एंड बेटा लीज रिटर्न ऑफ की दूसरी इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू लीज रिटर्न ऑफ 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड उसकी इफेक्ट जाएगी टू लीज रिटर्न ऑफ 60,000। हमने 1 ईयर यूज कर ली उस प्रॉपर्टी को, सो 1 ईयर का लीज लैप्स हो जाएगा बेटा, लैप्स खत्म हो जाएगा। तो उसमें से हमको 1 ईयर का लीज माइनस कर देना है। ओके बेटा, इज दैट एडजस्टमेंट अंडरस्टूड? इज दैट एडजस्टमेंट अंडरस्टूड? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बेटा नन ऑफ यू गिव मी अ थम्स अप व्हेन आई वाज आस्किंग कि कौन आंसर दे पाएगा। अब मैंने समझा दिया, अब तो थम्स अप दिखाओ यार कि समझ में आया, नहीं तो दोबारा समझाऊं। दैट्स ओके, दोबारा समझा दूंगा मैं। बेटा अभी भी जनता थम्स अप नहीं कर रही है। ये कैसी बात हो गई यार? ये वीरेन नहीं कर रहा है, रिद्धि नहीं कर रही है, वेदांशी नहीं कर रही है, दिशा थम्स अप नहीं दे रही है, मुबीन, मैत्री, कोई थम्स अप नहीं दे रहा है। ये हो क्या रहा है? बढ़िया, उन्होंने अभी भी नहीं दिया थम्स अप। बेटा ये जो अपने वीडियो ऑफ करके रखते हो ना तुम लोग, मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज देखना शुरू करी है डार्क। उसको वो वीडियो जिनको ऑफ रहता है मेरे को उनकी याद दिलाता है डार्क। पता नहीं कौन सी गुफा में बैठ के क्या रिसर्च कर रहे हैं ये लोग। वांदा नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट, सेकंड हिडन एडजस्टमेंट। बेटा सेकंड हिडन एडजस्टमेंट था लोन फ्रॉम ऋषि। बेटा सेकंड हिडन एडजस्टमेंट वाज लोन फ्रॉम ऋषि।
1,50,000 का ऋषि ने लोन दिया, 1,50,000 का ऋषि ने लोन दिया है। नाउ हमने सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू किए, हमने सारे एडजस्टमेंट गो थ्रू किए, कुछ भी ऋषि के लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ बात हो रही है? ऋषि ने जो लोन दिया है उसके इंटरेस्ट की कुछ भी बात हो रही है ऋषि? नहीं हो रही है। सो बेटा हमने बचपन में 12th स्टैंडर्ड में हमने पार्टनरशिप में ये थियरी में कुछ पढ़ा था कि पार्टनर अगर लोन देता है और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला हो तो हमें उस पार्टनर को कितना % इंटरेस्ट देने का? जरा थम्स अप करके दिखाओ, कितना % देने का? बेटा याद ही नहीं है, जनता को याद ही नहीं है। कुछ लोग इशारे करके मेरे को आंसर दे रहे हैं। बेटा ये अच्छा है, थम्स अप मत करो, इशारे करके आंसर बताओ, चलो तो मुझे पता चल जाएगा। ऐसा फिंगर्स से, हाँ फिंगर्स के साथ इशारे करो। सही है बेटा, फिंगर्स के साथ इशारे करो, फिंगर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, फिंगर्स के साथ जो इशारे कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की याद दिला रहे हो तुम मेरे को यार, ट्रैफिक पुलिस की याद दिला रहे हो। एक हाथ तो पूरा ही। अरे बेटा श्रुति दुबे ने तो जबरदस्त आंसर भेजा है। श्रुति बेटा 15% तुम्हारा आंसर गलत है, 15% आंसर गलत है तुम्हारा। बहुत बढ़िया बेटा, तुम इशारे भी नहीं कर रहे हो यार, ये तो खराब बात है यार, इशारे भी तुम नहीं कर रहे हो। हार्दी व्हाट इज द आंसर? यू आर सिटिंग। बेटा हार्दी व्हाट इज द आंसर? इशारा करके, इशारा करके। बराबर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। पहली बार इतने सारे ठेंगे ऐसे हाथ के साथ देखे, ऐसे ऐसे कर रही है जनता, ऐसे कर रही है। एक हाथ से पूरा ट्रैफिक रोक लिया है और दूसरे हाथ से जाने दो, ये वाले रोड को जाने दो। बेटा 6% इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, 6%। दैट वाज वन ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट। अगर पार्टनर ने लोन दिया है, नथिंग इज मेंशन्ड, उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे, 6%। सो वर्किंग केला, वर्किंग करो, वर्किंग करो, वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of interest on Rushi loan. Now he has given me loan of 1,50,000, rate of interest not mentioned, so that is 6%. Rate of interest not mentioned, so that's 6%, that is 9,000. बेटा 9,000 is the amount. बेटा अब मैंने तुमको हिडन एडजस्टमेंट क्या है बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बोला, इफेक्ट तो बोलो यार, कहां जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ऋषि की लोन की 2 इफेक्ट कहां जाएगी? वेयर विल आई शो द 2 इफेक्ट्स ऑन दिस लोन? कृतिका अनम्यूट बेटा, कृतिका। Sir, good morning. मॉर्निंग। Sir, first we will record loan from Rushi in balance sheet, liability side. लोन तो रिकॉर्ड कर लिया बेटा मैंने, लोन रिकॉर्ड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन बता। Balance sheet, liability side, outstanding interest on loan 9,000 and profit and loss account on debit side, 2 outstanding interest on loan 9,000. बेटा P&L आने क्या जैसे बैलेंस शीट? हाँ, P&L debit side ने balance sheet liability side. સર ત્યાં જ જશે ને? નહીં જશે, ત્યાં નહીં જાય, ત્યાં તો જશે. બેટા 12મા માં એવું આપણે શીખ્યા હતા, 12મા માં કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન આપણે P&L માં બતાડતા હતા, પણ ફર્સ્ટ યર બીકોમ માં એવું નથી શીખવાડ્યું મેં. ફર્સ્ટ યર બીકોમ માં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન કસે બીજે જાય છે? કોણ बताएगा? रिया गज्जर अनम्यूट। Sir, P&L appropriation debit side and partners capital credit side. Yeah, that's the answer. हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे हम, एंड इट्स अ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। सो हम P&L अप्रोप्रिएशन में उसका इफेक्ट देंगे, P&L अप्रोप्रिएशन में इफेक्ट देंगे। तो बेटा लिख लो, एवरीबॉडी लिख लो, 9,000 की 2 इफेक्ट कहां जाएगी? P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड,
and partners capital credit side. P&L appropriation debit side and partners capital credit side. And the amount is better 9,000. Amount is 9,000. Better any other adjustment which I have to explain it to you in sum number 18, you can ask me. कोई point अभी तुमको ना समझ में आया हो तो you can unmute yourself. और तुम बेटा अपनी आवाज उठा सकते हो. तुम अपनी आवाज उठा सकते हो. कोई डाउट हो तो पूछो. नो सर. अरे नहीं है तो नहीं उठानी आवाज. डाउट है तो आवाज उठानी है. यहाँ साले नो कितने फिर बोल देंगे यार, किसको मेरे को पता चलेगा. कुछ भी डाउट नहीं है पक्का. अरे कुछ भी नहीं है यार, बोलो तो सही. ऐसा ऐसा मुंडी तो हिलाओ यार, कोई डाउट नहीं है ऐसा करके. सरस सरस. बेटा क्या पढ़ाने लगा हूं यार आजकल मैं जूम पे. क्लास में तो अच्छा पढ़ाता ही था, लेकिन यार जूम पे भी ऐसा अच्छा पढ़ाने लगा हूं ऐसा लगता नहीं था. लेकिन तुम जैसी बैच आई है इसीलिए ऐसा हो पा रहा है, वरना तो होता नहीं है. तुम बैच ही ऐसी हो एकदम खतरनाक वाली. ठीक है, तो एक मिनट, स्तुति को कुछ डाउट आ रहा है. स्तुति अनम्यूट. स्तुति. हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों? पीएनएल डेबिट में नहीं होना चाहिए. बेटा हमने वो 12th स्टैंडर्ड में देखा था कि वो पीएनएल में जाता था एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. बट यहाँ पर कॉलेज लेवल पे एंड ऑल, वहां पर प्रोफेसर लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो पार्टनर रिलेटेड है तो वो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देंगे. अब अकाउंट्स का कैसा है, हर एक लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट है. तो 12th में हम एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से चलते थे, कॉलेज में हमको प्रोफेसर्स के व्यू पॉइंट से चलना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट गिव अस द मार्क्स. So professors and all in college, they feel that interest on loan, it's a expense which is related to a partner, and that is why the second effect goes to partner's capital account. So we are taking it to P&L appropriation account over here. Okay. So 12th में करते थे, वो भी व्यू पॉइंट बराबर था, ये भी व्यू पॉइंट बराबर है. हमको व्यू पॉइंट के हिसाब से चल के खाली आंसर में थोड़े चेंजेस लेके आने हैं, दैट्स इट. ठीक है. रचना, व्हाट्स योर डाउट बेटा? रचना. रचना अनम्यूट. सर मैंने पीएनएल में डेबिट साइड ही किया है, तो मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई है. टैली हो जाएगी बेटा. सी बैलेंस शीट टैली होने का कंसेप्ट क्या है? बैलेंस शीट टैली होने का कंसेप्ट क्या है? मैं एक दो एडजस्टमेंट भी अगर मैं भूल जाऊंगा ना सॉल्व करना, फिर भी मेरी टैली हो जाएगी बैलेंस शीट. If I forget to solve 2-3 adjustment, then also my balance sheet will tally, because हम जब एडजस्टमेंट करते हैं तब हम एक डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं और एक क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं. सो बिकॉज यू गिव अ डेबिट इफेक्ट एंड बिकॉज यू गिव अ क्रेडिट इफेक्ट, योर बैलेंस शीट इज बाउंड टू गेट टैलीड. लेकिन वो आंसर गलत आएंगे नेट प्रॉफिट के और उन सब के. ऐसा है. हाँ बेटा हेली, तुम्हें क्या डाउट है हेली? सर अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता तो हम उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते, क्योंकि वो लोन का इंटरेस्ट वो ऋषि के रिलेटेड ही है और तो कोई लोन है ही नहीं. तो हम पहले उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते और फिर देखते कि पूरी अमाउंट हो गई है तो नो प्रॉब्लम, और अगर कुछ अमाउंट बाकी है पे करना तो उसमें हम जोड़ देते. ओके सर. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो सीधा लायबिलिटी में लिख देते, और सिर्फ इंटरेस्ट होता तो हम वो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के होता तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिख देते. ऐसा. रचना आपको और कोई डाउट है बेटा? योर हैंड्स आर स्टिल अप. आपको कोई डाउट है? ओके ओके बेटा. एनीबडी एल्स एनी डाउट? कि फिर मैं बेटा मीटिंग कंक्लूड करूं? बेटा एक मैत्री का डाउट आ रहा है. एक्सप्लेन वंस अगेन लोन इफेक्ट्स. बेटा व्हाट्स द डाउट? मैत्री अनम्यूट. मैत्री. बेटा मैत्री, where are you? सर. Yes मैत्री, what's your doubt बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी આવશે ઇફેક્ટ એની? યા, પીએનએલ અપ્રોપ્રિએશન ના ડેબિટ સાઈડ બેટા અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ ના ક્રેડિટ સાઈડ. બે ઇફેક્ટ આપવી પડશે ને, બે ઇફેક્ટ આપવી પડશે. એટલે અહીંયા જો બેટા લખી જ છે મેં
I'll share the screen with you, Maitri. I have already written P&L na debit side and partners capital na credit side. Rushi na column ma jase. It will go in the column of Rushi, beta. Okay, sir. Okay. बेटा और कोई सवाल उठ रहे हैं कि बेटा गणपति बप्पा मोरिया करके मीटिंग एंड कर दूं? यार ये हर सैटरडे यार मेरे को तुमसे मिलना होता है, लेकिन कोई ना कोई ये त्योहार उत्सव आ जाते हैं और मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाती है यार। तुमको पता नहीं मैं कितना मिस करता हूं यार, तुमको कितना मिस करता हूं मैं तुमको। ये सैटरडे भी मेरा जूम मीटिंग नहीं है गणेश चतुर्थी के हिसाब से। तो बेटा कुछ करते हैं, नेक्स्ट वीक में कुछ गोठाउते हैं अपने, 3-4 मीटिंग करते हैं। कुछ लोगों ने माथे पे हाथ रख दिया, बे जाने राक्षस नहीं મળવું તને હું યાર મળવાની વાતો કરે છે। હેલી બેટા કઈ હજી ડાઉટ છે તમને? હજી કઈ ડાઉટ છે? હા બોલો, શું ડાઉટ છે? સર ફરી એકવાર સમજાવી દો ને પેલું। અગર ટ્રાયલ બેલેન્સ માં આપ્યું હોત આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન તો શું ઇફેક્ટ થાત? એટલે ટ્રાયલ બેલેન્સ માં બેટા આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ કઈ બાજુ છે? ક્રેડિટ સાઈડ હોય ને। આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાયલ બેલેન્સ માં ક્રેડિટ બાજુ હોય તો એ સીધી લાયબિલિટી માં જતું રહે। અને અગર ઇન્ટરેસ્ટ લખ્યું હોય તો ટ્રાયલ બેલેન્સ માં ડેબિટ સાઈડ હોય। જો એ ડેબિટ સાઈડ હોય તો આઈધર ઇટ ગોઝ ટુ P&L or it goes to P&L appropriation. Yeah. Okay sir. Okay. बेटा आप फाइनल बाय फाइनल। चलो बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। टाटा बाय बाय। Bye bye. Bye sir. Bye sir. Bye. Bye sir. Bye sir. Bye sir. गणपति बाप्पा मोरया। हाँ गणपति बाप्पा मोरया।